Good morning, students, participants. Honorable President and Principal of our JIT College, Dr. Ansari Mohammad Harun Mohammad Ramzan sir, coordinator for today's webinar, Dr. Lodi ma'am, HOD of Geography Department, Dr. Pawar sir. I am here to introduce our distinguished personality for today's national webinar. Today's national webinar on career guidance, civil service as a career option. It is organized by JIT Senior College. For that, we have a very distinguished personality, Honorable Mr. Sunil Kadasne sir. He is IPS officer from Nasik. Currently, he is working as a Assistant Superintendent of Police, Anti-Corruption Bureau, Nasik region. Sir has started his career from Thane Rural. He has served SDPO, Malkapur Division, Buldhana District, and Manmad Division in Nasik District. Additional Superintendent of Police, Sri Rampur District, Ahmednagar, and Malegaon District of Nasik Rural region. He has serving as Superintendent of Police, Anti-Corruption Bureau, Nasik Range, Nasik. Sir, he has a huge record in his career and the recipient of Union Home Minister Medal for Excellence in Investigation for the year 2021. He is also recipient of Mahatma Gandhi Shantata Puraskar for the year 2015. He has received so many appreciation letters and awards for his outstanding work during his tenure for the civil services. He did a lot of successful work during COVID-19 pandemic situation in Malegaon. Now, for his success, he called COVID Control Malegaon Pattern. Sir holds BCom and MBA degree. He can speak, write many languages like Urdu, Arabic, Punjabi, English. During his service tenure, he has helped so many people for taking education, inspired many students and many youngsters to join civil services, and addressed to many youngsters for cracking the competitive examination. So we have a very honorable personality. So over to you, sir. Kadasne sir. Sir, please unmute yourself. Yeah. Hello. Yes, sir. You are audible. Sir. Yeah. Assalamu alaikum, sir. Alaikum salam, sir. Assalamu alaikum to everyone present for this webinar. All the seniors and all teacher, asatizas और बच्चे, मैं बड़ा खुश हूँ कि मुझे यहाँ मदऊ किया गया है इस वेबिनार के लिए। और अभी नासिक में हूँ और मुझे यादें आती हैं कि मालेगांव में 4 साल खिदमत अंजाम दी मैंने शहर में,
और शहर ने मुझे बड़ा प्यार दिया, मोहब्बत दी और मुझ पे भरोसा किया। तो उन यादों को साथ में लेकर अभी मेरा सर्विस का सफर और जिंदगी का सफर जारी है। इंशाअल्लाह ता कयामत मालेगांव की यादें इस दिल में बसी रहेंगी। तो सर क्या मुझे बोलना है अभी? जी सर, नाउ यू कैन स्टार्ट सर। मैं यूपीएससी यानी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के ताल्लुक से ये प्रोग्राम रखा गया है। तो जब मैंने सिविल सर्विसेज का एग्जाम दिया था उस वक्त आज से करीब करीब 20-21 साल हो चुके हैं। उसके बाद बड़ा तबादला हो चुका है, बड़े चेंजेस आए हैं एग्जाम के पैटर्न में और पढ़ाई के पैटर्न में। तो ये सारे चेंजेस से मैं पूरी तरह खुद वाकिफ नहीं हूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इनिशियली, सिंस दिस इज द इनिशियल प्रोग्राम, मैं बताना चाहूंगा आप तमाम को, बच्चों को, कि किस तरह से हमको खुद को तैयार करना है एग्जामिनेशन के लिए और किस तरह से आगे बढ़ना है माशरे में और अपने सपनों को पूरा करना है। पहली बात तो यह है कि हमारे दिल में एक जज्बा होना बहुत ज़रूरी है। सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम जो होता है वो कोई मामूली एग्ज़ाम नहीं होता। उसमें जैसे कि हम लोग कुछ दिन पढ़ लिए और एग्जामिनेशन में बैठ गए और कामयाब हो गए, ऐसा नहीं होता है यहाँ पर। यहाँ पर मुसलसल जद्दोजहद करनी पड़ती है, मुसलसल पढ़ना पड़ता है, हर टॉपिक के टच में रहना पड़ता है और इसकी इब्तिदा बहुत पहले से करनी पड़ती है। जिस तरह के मैं शुक्रिया अदा करूंगा अदारे का, जेएटी स्कूल का, लोधी साहब का, डॉक्टर साहिबा का और तमाम मोहतरम हजरात जो हैं जिन्होंने ये प्रोग्राम वजूद में अभी लाया है। कि कहा जाता है अंग्रेजी में कि अगर किसी को कुछ बनाना है जिंदगी में, कामयाब कराना है, तो यू शुड कैच देम यंग। कैच देम यंग मीन्स उनको जब वो जवान हैं, जब वो बच्चे हैं, तभी उनको पकड़ो और तभी उनको ट्रेन करो। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि इस उम्र में बच्चियों को और सबको ये तालीम मिल रही है और ये डायरेक्शन मिल रहा है, ये गाइडेंस मिल रहा है मालेगांव में जेएटी की तरफ से कि अपने आप को सिविल सर्विसेज के लिए किस तरह ट्रेन किया जाए। जब हम लोग थे, आप बड़े खुशनसीब हैं कि आपको ऐसे रहनुमा मिले हैं जो आपको रास्ता दिखा रहे हैं इस बात के लिए। हमारे ज़माने में ऐसा कोई अदारा नहीं था, ऐसा गाइड करने वाला कोई नहीं था। ना पेरेंट्स जानते थे कि बच्चे बाहर क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कौन सा एग्ज़ाम दे रहे हैं। इतना इल्म तो वालिदैन को भी नहीं था। तो उस ज़माने में ये इम्तिहान देना काफ़ी मुश्किल था। अभी हालांकि इम्तिहान बड़ा मुश्किल है, मेहनत बहुत करनी पड़ती है, लेकिन आपके पास वो सारी चीज़ें अभी आपको हासिल है जिसके मदद से, जिसके ज़रिए आपको सिविल सर्विसेज के एंड तक पहुंचना काफ़ी आसान होगा। तो पहली बात मैंने कही कि दिल में एक पक्का जज्बा होना ज़रूरी है और मैं समझता हूँ कि बच्चियां हैं काफ़ी, जेएटी यानी बच्चियों का कॉलेज है, तो ये लड़कियां जो हैं, आपके लिए ये बड़ी वेलकम बात है कि आपने ज़िंदगी में सिविल सर्विसेज देने का इरादा किया है और ये बड़ी खुशी की बात है। तो वैसे भी देखा गया है कि माशरे में लड़कियों की पढ़ाई की तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती। तालीम निस्वा जिसको कहा जाता है, बच्चियों को पढ़ाना, कहा जाता है कि तंजीम अगर कौम की है तुम्हें मंजूर, तंजीम अगर कौम की है तुम्हें मंजूर, तो बच्चों से पहले माओं को तालीम दीजिए। तो अगर माएँ पढ़ेंगी तो बच्चियां पढ़ेंगी, बच्चे पढ़ेंगे और माशरा उसमें इल्म माशरे को सारे इल्म मिलेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। इसमें सबसे मैंने देखा है, मैं कंपेयर करता हूँ हमेशा कि बाकी जगह भी मेरी नौकरी हो चुकी है, तो दीगर मज़ाहिब या दीगर कम्युनिटीज़ में मैंने देखा है कि बच्चियों को तालीम देना और बच्चियां बड़े ज़ोर शोर से आगे आ रही हैं, बड़े ज़ोर शोर से आगे आ रही हैं। इसके बनिस्बत
उम्मत में बच्चियों को आगे आना बहुत जरूरी है, क्योंकि माशरे में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। कोई समाज दूसरा की बच्चियां आगे निकल जाती हैं। हमारे पास इल्म है, हमारे पास जहन है, अल्लाह ताला ने हमको वो सिफत व कुव्वत दी है कि हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़े, और हम क्या हासिल नहीं कर सकते। वी कैन अचीव एवरीथिंग दैट वी वांट टू अचीव इन लाइफ, क्योंकि इंसान को अल्लाह ताला ने पैदा किया है, आदम अलैहिस्सलाम, माँ हवा अलैहिस्सलाम को पैदा किया, और हम सब उनकी औलाद है। उनको पैदा किया है अशरफुल मखलूकात करके, सारी मखलूकात में सबसे अव्वल, सबसे अफजल तरीन, सबसे अच्छा। और हमको जहन दिया है, हमको सोचने की, बात करने की कुव्वत सुखन दी है, सोचने की कुव्वत दी है। तो हमारी जिंदगी को किस तरह बेहतर बनाना है ये हम समझ सकते हैं। लेकिन दूसरे समाज के बनिस्बत मैं देखता हूँ कि बच्चियां हमारे सोसाइटी में मौका नहीं मिलता, या तो फिर काफी रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं। इसकी वजह से हम लोग पीछे रह जाते हैं, भलाई कितने ज़हीन क्यों ना हो, और कितनी हमको हमारा इरादा क्यों ना हो कुछ करने का, हम वो कर नहीं पाते। तो सबसे पहली बात मैं आप तमाम को कहूंगा कि पहले पक्का इरादा कर लिया, हमको ये करना है, मुझे ये करना है तो करना है। क्योंकि देयर इज अ वंडरफुल सेइंग इन इंग्लिश, इट गोज लाइक दिस, इट सेज इफ यू वांट टू बी, अगर तुमको होना है, if you want to be what you want to be, if you want to be what you want to be, then be what you want to be. अगर तुमको बनना है जो तुमको बनना है, तो बनो जो तुमको बनना है। ये इरादा अपने दिल में ठान ले, और इंसान का दिल सबसे बड़ा मुफ्ती होता है। वो जो डिसीजन देता है और हम कहते हैं अपने दिल से कि हम मुझे ये करना है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह भी हमारी मदद करेगा, हमारी और हमारी रहनुमाई करने के लिए है। तो सबसे पहले एक पक्का इरादा आप कर लें। दूसरी बात यह है कि सिविल सर्विसेज का एग्जाम जो है, उसके लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है, और देखा गया है, मेरा ये तजुर्बा है कि 8 से 10 लाख लोग हिंदुस्तान में, देश में हमारे, सिविल सर्विसेज का एग्जाम देते हैं, लेकिन उसमें सीरियस बहुत कम होते हैं। देखा गया है कि बहुत लोग लाखों की तादाद में सिविल सर्विसेज का फॉर्म भर देते हैं। फॉर्म भर देते हैं तो उनको ये फीलिंग आ जाती है कि जैसे कि हम आईएएस हो गए, जैसे हम कलेक्टर हो गए या हम एसपी हो गए। इस टाइप की जो फीलिंग होती है, वही इंसान की पहली हार होती है। अगर तुमको कुछ करना है, अगर सिविल सर्विसेज में आगे, तो फॉर्म तो भरना ही है, लेकिन उसके साथ कोशिश भी बहुत जरूरी है। अगर कोशिश नहीं करोगे तो कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि मेहनत का नतीजा ही कामयाबी होती है। तो मैंने बहुत से लोगों को देखा है, और इसीलिए जो 8-10 लाख लोग फॉर्म्स भरते हैं, उसमें से सही कॉम्पिटिटर्स 2-2.25 लाख लोग ही होते हैं, ऐसा मेरा तजुर्बा है। तो वैसे भी कंपटीशन वैसा ही कम होता है। अगर आप ये दिल में गांठ बांध लें कि ये हमको करना है, तो इंशाअल्लाह आपको सक्सेसफुल होने से कोई रोक नहीं सकता। दूसरी बात है टाइम मैनेजमेंट की। अपना वक्त जाया ना करें। सबसे इंपॉर्टेंट है कि यू शुड डिसिप्लिन योरसेल्फ। सुबह जल्दी उठना है, पढ़ना है, वक्त जाया नहीं करना है। दोस्तों के साथ गप्पे मारना, गपशप लड़ाना, ये बातें तो ठीक है, एज पर योर एज, और जिंदगी में ये बातें बहुत जरूरी है। लेकिन इस पर खास करके तवज्जो दी जाना जरूरी है कि हम अपना वक्त कैसे कंस्ट्रक्टिव काम में लगाएं। और हमारा कंस्ट्रक्टिव काम इसके आगे होने वाला है कि हम सिविल सर्विसेज के लिए कामयाब होने की कोशिश करने वाले हैं। तो हमको उस डायरेक्शन में चलना चाहिए कि हमारा वक्त हम किस तरह मैनेज करें। क्लासेस हैं, हमारी ट्यूशन्स हैं, और हमारा और कोई शौक होंगे, कोई और कोई बच्चों को पढ़ाता होगा, या तो कोई गेम्स खेलते होंगे आप लोग। उसमें से हमको टाइम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। एग्जाम तो 2 स्टेप्स में होता है, पहले प्रीलिम्स होती है, उसके बाद में मेन एग्जामिनेशन आता है। तो हमारे वक्त में प्रीलिम्स जो थी, तो प्रीलिम्स में 2 पेपर हुआ करते थे, एक ऑप्शनल हुआ करता था और एक जनरल स्टडीज का पेपर हुआ करता था।
प्रीलिम्स में, दोनों पेपर एक ही दिन में होते थे और उसके बाद में प्रीलिम्स का नतीजा आता था। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट तो आपको अभी पैटर्न चेंज हुआ है, ऑप्शनल आपको नहीं होगा, आपको एक जनरल स्टडीज का पेपर होता है, उसके बाद में आपको मेंस में ऑप्शनल्स लेने पड़ते हैं और वो एग्जाम सारा डिस्क्रिप्टिव होता है, 2000 से ज्यादा के करीब इंक्लूडिंग द इंटरव्यू उसमें मार्क्स होते हैं। मैं जनरल स्टडीज के ताल्लुक से आपको बताऊंगा कि जनरल स्टडीज इज सच अ सब्जेक्ट जिसमें सूरज के नीचे और धरती के भी नीचे का कोई भी सवाल आपको पूछा जा सकता है। तो यू हैव टू बी वेल रेड, यू हैव टू बी वेल वर्स्ड इन ऑल सब्जेक्ट्स, जैसे लिटरेचर हो गया, हिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, इंडस्ट्री का क्या हाल है, उसके बाद में वेदर का क्या हाल है, ये ज्योग्राफी की बातें हैं, इंडस्ट्री तो इंडस्ट्री की बात है, इकोनॉमी का क्या हाल है, ये सारी बातों को अपने जहन में बिठाना बहुत जरूरी है। और ये एक दिन की बात नहीं है, इसमें कंटिन्यूअसली जहद मुसलसल करनी पड़ेगी और इसके लिए आपको ज़रूरी है कि जनरल नॉलेज जिस तरह से आपको बढ़ाना है तो आपको न्यूज़पेपर्स पढ़ने होंगे, अच्छी मैगजीन्स पढ़नी होंगी, अच्छे पेपर्स पढ़ने होंगे, अच्छी किताबें पढ़नी होंगी। इसीलिए क्योंकि एक किताब पढ़ के कोई यूपीएससी सिविल सर्विसेज क्लियर नहीं हो सकता, ये सारा नॉलेज आपको कलेक्ट करना पड़ेगा। और इसके साथ मैं एक बात आपको और बताऊंगा कि अपना अगर ग्रुप बन जाए, बच्चियां स्टूडेंट्स अगर एक ग्रुप में रहें, जो ग्रुप जिस ग्रुप में हमेशा इसी बात का डिस्कशन हो कि आज मुल्क में क्या हुआ है, बैरूनी मुमालिक में क्या हो रहा है, उधर रशिया यूक्रेन में क्या हो रहा है, जैसे जो हॉट टॉपिक है अभी चल रहा है उसमें क्या हो रहा है, इकोनॉमी का क्या हाल है, वेदर किस टाइप का है, ये हर चीज है, हिस्ट्री की बातें हैं, हिस्ट्री में क्या हो, ये डिस्कशन करना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स को एक दूसरों के बीच में। इसीलिए अपने ग्रुप अगर आप बनाएंगे तो आप अपने आप को गेज कर पाएंगे कि वेयर यू स्टैंड। अगर दूसरे स्टूडेंट्स अच्छी बातें करते हैं, आपसे बेहतर है, तो उसमें आपके दिल में भी उम्मीद जगेगी, द स्पिरिट ऑफ कंपटीशन विल बी बॉर्न इन यू कि हमको भी इस तरह से बनना है। अच्छे स्पीकर्स जो हैं उनकी बातें सुनना जरूरी है और हमेशा अपना वक्त सेव करके इस काम में लगाना है। इस तरह से जनरल स्टडीज की किताबें, एनसीईआरटी की जो बुक्स है स्कूल लेवल की, उससे शुरू करना कहा जाता है कि उससे शुरू करना सबसे बेहतर होता है, बिकॉज एनसीईआरटी की किताबों में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल साइंसेज, ये जो किताब सब्जेक्ट्स हैं, ये सारे सब्जेक्ट्स हमको बेसिक इंफॉर्मेशन, प्राइमरी इंफॉर्मेशन देते हैं हमारे सब्जेक्ट्स की। तो हमने भी वैसे ही शुरू किया था, मेरे ख्याल से अभी भी बच्चे ये किताबें रेफर करते हैं। उसके बाद में प्रीलिम्स के बाद फिर आपको मेंस का सामना करना पड़ता है। मेंस के लिए फिर आप यू हैव टू स्टडी वेरी वास्ट, मेंस का स्टडी बहुत वास्ट होता है। ये तो बातें हैं पढ़ाई की और इन सब्जेक्ट्स की कि आपको किस तरह से पढ़ना है। वैसे मैं एक और बात बताऊंगा आपको, एवरी पर्सन इज डिफरेंट, हर शख्स को अल्लाह ताला ने अलग अलग बनाया है। जिस तरह से मैं पढ़ा हूँ, जिस तरह से कुछ बाकी ऑफिसर्स पढ़े हैं, बाकी लोग पढ़े हैं, ये जरूरी नहीं है कि आप उसी तरह से पढ़ो। आपको जिस तरह से सूट करता है उस टाइप से अगर आप पढ़ें तो मैं समझता हूँ कि आप काफी कंफर्टेबल रहोगे। और एक सपना दिल में ठान लेना है कि हमको बनना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है, इरादा पक्का होना चाहिए। इरादा पक्का होगा और मंजिल की ओर जाना है तो बस कंसंट्रेशन उसी पे होना चाहिए। नहीं तो हम देखते हैं कि ये आईएएस बन गया, वो आईपीएस बन गया, ये एमपीएससी में पास हो गया, तो ऐसी न्यूज देखते हैं, या तो हमारे शहर के कुछ बच्चे बन जाते हैं। मैंने एक बात देखी है कि मालेगांव सेंट्रल से ज्यादा स्टूडेंट्स आउटर से ज्यादा सिविल सर्विसेज में आए हैं। जहां तक मेरा ख्याल है, जहां तक मेरा इल्म है, एक खातून है, विस्कुते उनका नाम है, वो संगमेश्वर की है, जिसको मालेगांव वाले समकशेर कहते हैं, वहां से है। तो वो आईएएस बनी 2 साल पहले। अभी वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिला परिषद बुल्ढाना में काम करती है एज ए सीईओ।
एक निकम करके दाभाड़ी से है, वो आईपीएस बने, एक मयूर पाटिल करके हैं, एक आहिरे करके, ये लोग 7-8 साल पहले वहां से मालेगांव से आउटर से आईपीएस बने हैं। तो मैं दिल से ये चाहता हूँ कि मालेगांव सेंट्रल से हमारी बच्चियां आगे आए। मेरी एक बच्ची जेएटी में पढ़ती है, इकरा सदफ उसका नाम है, और वो भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही हैं और बहुत मेहनती है, लब कुशाही में बहुत माहिर है, अच्छे अच्छे स्पीचेस देती हैं। एक बात और बताना चाहूंगा आपको कि यू हैव टू बी वेरी गुड इन ओरेटरी। आपको बात करने का जज्बा चाहिए, यू शुड नो हाउ टू टॉक। अंग्रेजी अपनी इंप्रूव कीजिए, उर्दू तो है ही आपकी अच्छी, और अगर मेंस का पेपर, मुझे पता नहीं अभी सिलेबस किस टाइप का है, मैंने कॉपी ले लिखी है अभी सिलेबस की, मैं इंशाल्लाह जेएटी भिजवा दूंगा, अगर आपके पास नहीं है तो, नहीं तो फिर नेट पे डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारा सिलेबस यूपीएससी का और सारा प्रोग्राम यूपीएससी 2022 का प्रोग्राम उसमें है। तो उसके जरिए आपको एक गाइडलाइन मिलेगी कि किस तरह से एग्जाम के लिए पढ़ना है। और मैं आप तमाम को मुबारकबाद देता हूं कि आपने इरादा किया है, और फिर सब सारे मैनेजमेंट को मैं फिर शुक्रिया अदा करता हूं। इसके आगे कोई सवालात हो या और कोई बातें हो तो मैं आपके लिए यहाँ पर हाजिर हूँ। शुक्रिया। Thank you, sir. सर और कुछ छोटी छोटी बातें हैं तो इतना तो इंट्रोडक्शन है, बाकी इसके आगे आप जैसा कहें वैसा चलेंगे आगे सर। जी सर, बिल्कुल। तो शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच फॉर such a wonderful guidance for students, and hope it will be a humble request that you will be in offline mode in our college soon. डेफिनेटली सर, मैं चाहता हूं कि हमेशा शहर के टच में रहूं, और जेएटी से मेरा अच्छा ताल्लुक रहा है, निहाल लोधी सर से भी है, और निहाल साहब से भी है, और आपसे भी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि कौम को, मुसलमानों को, खास करके मुसलमानों को मेन स्ट्रीम में आना बहुत जरूरी है। जी सर। अगर, और इसका सबसे अच्छा जरिया पढ़ाई है, इल्म हासिल करना है। और मालेगांव के ताल्लुक से मैं एक बात कहूंगा कि हम क्यों नहीं चाहते कि शहर से बाहर, अगर यार ये देखा मैंने, ताना बाना है, बच्चियां शहर में ही बह जाती है, रिश्ते मालेगांव में ही बनते हैं, ठीक है, वो एक सोशल सिक्योरिटी की ताल्लुक से बड़ी अच्छी बात है, लेकिन फॉर करियर ओरिएंटेड बॉयज एंड गर्ल्स, जिनका करियर बनना है, उनको दुनिया बहुत बड़ी है। हम अपने शहर को देखते हैं और हमको ही देखते हैं। अगर आपको अचीव करना है कुछ, तो हमको अपना दायरा छोड़ना पड़ेगा, हमको बाहर निकलना पड़ेगा, और बाहर निकलने के लिए हमको इल्म की बहुत जरूरत है। हिम्मत तो हमें है, हमारी रहनुमाई करने के लिए अल्लाह ताला है, और एक बार इरादा हमने कर लिया तो बेशक हम आगे चलेंगे, लेकिन इसके लिए अपने सपनों को पूरा करने के लिए घर को छोड़ना पड़ता है। ये बात हमेशा याद रहे, क्योंकि सिविल सर्विसेज में अगर आप आते हो तो आपको ये भी इरादा करना है कि जहां तक, भलाई चांद तक हम जाएं, लेकिन हमको जिंदगी में सक्सेसफुल बनना है। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इल्म हासिल करना है तो चीन भी जाना पड़े तो आप जाओ। तो हमारे नबी ने फरमाया कि मुल्क छोड़कर भी तुम जाओ और इल्म हासिल करो। तो हमको हमारा शहर छोड़ने की तैयारी रखनी चाहिए, इतना इमोशनल। और मैं जानता हूं कि हमारे शहर का हर फर्द और हमारे शहर की हर बच्ची, हर शख्स अपने शहर के बारे में बड़ा सेंसिटिव है, अपने शहर से बहुत प्यार करते हैं लोग, और शहर छोड़ने का जब आता है तो दिल में हलचल मच जाती है। इसीलिए मैं कहूंगा कि ये जरूरी है कि आप इस बात को ख्याल में रखें, क्योंकि अगर आपको कामयाब होना है, अगर लड़ाई जीतनी है, तो शहादत भी देनी पड़ती है। अगर जिंदगी में कुछ सक्सेसफुल होना है तो कुर्बानियां देनी पड़ती है। इसीलिए सैक्रिफाइस इज अनदर इम्पॉर्टेंट इशू which will make you sacrifice your time, which will make you sacrifice
your friends, which will make you sacrifice your sleep, which will make you sacrifice your leisure time, and which may make you sacrifice your city also at sometimes. You never know. बाहर जाना है तो पढ़ना है तो आपको ये भी तैयारी रखनी पड़ेगी. बिल्कुल सर, जितनी भी बातें आपने हमको बताई है, इंशाल्लाह जरूर हम लोग उसको आगे हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे सोसाइटी को, हमारे माशरे को देने की कोशिश करेंगे सर. जी बहुत बहुत शुक्रिया सर. और अगर कोई सवालात हो तो आई एम हियर टू आंसर. हाँ, पार्टिसिपेंट स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि कोई आपको सिविल सर्विस के बारे में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में सर से कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं. पार्टिसिपेंट्स, सर एक स्टूडेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछना चाहेंगे. जी सर, मेंस के एग्जाम में कौन कौन से सिलेबस पे ज्यादा फोकस करना है? सॉरी, फिर बोलिए बेटा. मेंस एग्जाम में कौन कौन से सिलेबस पे ज्यादा फोकस करना है? हेलो सर. हेलो. हेलो सर. उनके पास नेटवर्क चल रहा है. उनके पास नेटवर्क चला गया, नहीं होगा. विजय इधर को सेट कर पीपीटी मेरा आपको दे सकती डेस्कटॉप पे. अच्छा बोले, मैं ऑन नहीं थी, आपको देखी तो myself first of all, I would like to pay my sincere gratitude and vote of thanks to Honorable Alhaj Mir Ahmed Ansari Sahib, Chairman JT Trust, and hello, sir, unmute please. अपने को करना पड़ेगा ना रिकॉर्डिंग, नहीं होता. नहीं से करो, नहीं से. हाँ, ये सर. अडासनी साइड करना है. नहीं है. हेलो. हाँ, अब आवाज आ रही है? हाँ सर. Yes, sir. Yes, sir. You are audible, sir. Myself, Pawar BK, is here in front of you for sincere gratitude and vote of thanks. First of all, I would like to pay my vote of thanks to Honorable Chairman Alhaj Mir Ahmed Ansari Sahib, Chairman JT Trust, and management members. Secondly, I am also thankful to Honorable Principal Mohammad Harun Mohammad Ramdan, as well as Dr. Salma Abdul Sattar, Academic and Administrative Coordinator, then Professor Munawar Anwarullah, IQAC Coordinator, and Professor Sunitra Mishamkar, NAC Coordinator. Thank you all. सुरक्षा का आगे का बोलना है आपकी. Excuse me, sir. At last, I would like to pay vote of thanks to Sunil Kadasne Sahib. Sunil Kadasne Sahib at present is working as Superintendent of Police in Anti-Corruption Bureau, Nasik Range, Nasik. Sir, आप जब मालेगांव सिटी में
कायम थे। तो यहाँ पर आपकी जो सर्विस थी, as your services were there in Malegaon city, the people have in your hearts, सब शेर अजीज आपके लिए दिल में जगह आपकी बनाए रखे हुए हैं। और आपके सर्विस के दौरान जब आप एक एनुअल सोशल गैदरिंग में आए थे, उस दौरान आपने कुरान के आयत पर जब बताए थे तो सब लोग हक्का बक्का रह गए थे। इस तरह से ये मैसेज ये जाता है कि लैंग्वेज इज नॉट हर्डल फॉर एनीवन, एवरीवन शुड नो, इट मे बी मराठी, इंग्लिश, उर्दू, अरबिक, पर्शियन, व्हाट इट मे बी। So really, on behalf of management, organizing committee and college, I pay my vote of thanks to you, sir. Thank you, sir. Dear participants, हमारा फर्स्ट सेशन ओवर हुआ। इसके बाद सेकंड सेशन के लिए हमारे साथ है रिसोर्स पर्सन डॉक्टर सलमा अब्दुल सत्तार मैडम, एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑर्डिनेटर जेपी आर्ट साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज मालेगांव। मैडम के तारुफ के लिए कहना चाहूंगी कि मैडम जो है जेटी कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट की एक स्टूडेंट है और जो है उन्होंने तालीम पर बीए करने के बाद इस इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन किया और जो है पीएचडी की और एलएलबी भी उन्होंने किया। उनके आज एट प्रेजेंट जो है वो पीएचडी गाइड की पोस्ट पर है सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी में। मैडम के जो है बहुत सारी रिसर्च पब्लिकेशंस हैं, बुक्स लिखी भी हैं और जो है काफी उनका अचीवमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, रिच बायोडेटा है। मैं जो है प्लेसमेंट सेल और करियर काउंसलिंग सेल की जानिब से मैडम का इस्तेमाल करना चाहूंगी। बोलना चाह रहे हैं, ठीक है, तो बात करिए, वो है भी मीटिंग में। क्वेश्चन पूछिए उनको, आंसर देंगे। वो पहले करवा लो ना सर। पहले सर को जो क्वेश्चन दिया Kadasne sir, can you hear me? Yes. हाँ सर, the question था वो स्टूडेंट का कि मेंस के लिए यानी मेन एग्जाम के लिए किस सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस करना था? एग्जामिनेशन के लिए सबसे ज्यादा फोकस करना है हर चीज पर जो आपका जो ऑप्शनल है। और जिस तरह से मैंने कहा कि अगर मेंस पे आपको फोकस करना है तो आपको सबसे पहले प्रीलिम्स पे फोकस करना है, क्योंकि जब तक आप मेंस के पुल तक नहीं पहुंचोगे, प्रीलिम्स का पुल पास करके, तब तक आप मेंस के लिए अपेयर नहीं हो पाओगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको हर चीज का, हर सब्जेक्ट का नॉलेज रहना बहुत जरूरी है और आपके जो ऑप्शनल्स होंगे खासकर उन पे कंसंट्रेट करना जरूरी है, जनरल स्टडीज पे कंसंट्रेट करना जरूरी है। और मैं एक मशवरा और दूंगा आपको कि किसी सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा मार्क्स गुज़िश्ता साल में बच्चों को मिले हैं तो उसके पीछे ना भागे। आपको जो चीज, जिस चीज में, जिस सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट है, जो आप पढ़ने में आपको दिलचस्पी लगती है, जो टॉपिक आपको अच्छा लगता है, सब महज किसी को हिस्ट्री अच्छा लगता है, कोई ज्योग्राफी से दिल लगाता है, किसी को लिटरेचर अच्छा लगता है। तो ऐसे जो चीजें हैं जो अब हमारे दिल को जो अच्छी लगे वही सब्जेक्ट्स लेने हैं आपको, क्योंकि उसमें आप बेहतर कारकिर्दगी कर सकोगे, उसमें आपका हुनर आप बेहतरी से दिखा सकोगे, क्योंकि उसमें आपको इंटरेस्ट है, आप उसमें पढ़ोगे, उसमें आप और ज्यादा इंटरेस्ट लेके उसको अंजाम देने की कोशिश करोगे। तो मेरा यही मशवरा रहेगा कि आपको जो अच्छा लगता है वो करें आप। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर वैल्यूबल गाइडेंस सर। थैंक यू वेरी मच। और आई अगेन थैंक निहाल अंसारी साहब, निहाल लोधी साहब, प्रिंसिपल साहिबा और आप खुद सर और सर जिन्होंने वोट ऑफ थैंक्स दिया। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं वापस फिर आपसे इस जरिए क्यों ना हो रूबरू हूँ और इंशाल्लाह
फिर मुलाकात होगी। और बच्चों के लिए मैं एक बात और कहूंगा कि अगर थोड़ी सी भी नाकामयाबी या तो थोड़ा सा भी फेलियर जिंदगी में आता है तो उससे मायूस नहीं होना है हमको, क्योंकि कहते हैं कि टूटने लगे जब हौसले, टूटने लगे जब हौसले तो बस इतना याद रखना, टूटने लगे जब हौसले तो बस इतना याद रखना, बिना मेहनत के तख्त-ओ-ताज कामिल नहीं होते। क्या टूटने बात लगे जो क्या बात है हौसले सर, बहुत अच्छे से। तो बस इतना याद रखना, बिना मेहनत के तख्त-ओ-ताज कामिल नहीं होते, और ढूंढ ही लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो अपनी क्या रोशनी बात है खुद सर, पैदा करो। क्या बात है बहुत सर। बहुत शुक्रिया, और फिर मुलाकात बहुत होगी बहुत शुक्रिया सर, इंशाल्लाह। हम बहुत आज लकी फील करें आपको सुन पाए, बहुत बहुत थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया, और अल्लाह आप तमाम को खुश रखे, हर जायज मुराद पूरी करे, आफियत का मामला फरमाए और कामयाबी अता फरमाए आप तमाम। आमीन सर, आमीन। Thank you, sir. Thank you very much. थैंक यू, थैंक यू बाय, सर, थैंक यू वेरी मच सर, वंस अगेन। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय हिंद, जय जय हिंद। हिंद। थैंक्स। बंद कर सकते